अरे सर नमस्कार. काय रे धावपळ लागली आज सर. Okay, good morning students. Yesterday only we have started with our fourth unit color models, right? So in yesterday's lecture we have gone through the different concepts like what is light, what are the properties of light, then what is color gamut, what is RGB color gamut, then what is chromaticity diagram, and what are the different color models. So उसमें से that first RGB color model that we have gone through, right? So anybody can explain what is RGB color model? Just some basics. Now see, this is the RGB color model, right? That yesterday we have seen. So this is the additive color model, as I said, because it adds red, blue, and basic three primary colors, that is red, blue, and green color to produce wide range of colors, right? So इसका application भी बताया था कि it is used to define the colors in monitors, right? TV, mobile phones, video projectors. Like it is a device dependent model. So it varies from manufacturer to manufacturer. So zero intensity of this RGB colors represent black color, whereas full intensity of this RGB represents white color, right? And this is the gray scale. That means equal proportion of this red, green, and blue in the range 0 to 1 produce the gray shades, right? So RGB का complementary colors मैंने बताया था, those are cyan, magenta, and yellow, right? These are the complementary colors of RGB. तो complementary colors किसे कहेंगे? Complementary colors. Do you remember what are the complementary colors? So when you combine the two colors, right, to produce the neutral color like white color, then pair of colors is called complementary color. So as I said earlier, R, G, B, these are the primary colors, and R का complement रहेगा cyan color, complementary color of J is magenta, complementary color of blue is yellow. So when these two colors, red and cyan, you combine together, it will produce the neutral color white. When you combine this green and magenta, it will produce white color, right? Similarly for blue and yellow. Okay. Now next color model is CMY color model. तो जैसे कि RGB के लिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू were three primary colors. Similarly for CMY color model, cyan, magenta and yellow. These three colors are primary colors. See this cube. So cyan, magenta and yellow, right? So cyan,
represents x-axis, coordinates are 1, 0, 0, magenta 0, 1, 0. That magenta you will represent on y-axis, and yellow will represent on a z-axis. So its coordinates are 0, 0, 1, right? So RGB color model मैंने बताया था कि it is a additive color model, whereas CMY color model जो है it is subtractive color model. Why subtractive color model? RGB में हमने देखा था कि it is going to produce the range of colors by adding what? Three primary colors, red, green and blue. Whereas in CMY, if you want to produce the colors like cyan, magenta and yellow, these colors can be produced by removing some color from white light, right? So, or more specifically, you can describe as a जो भी CMY में कलर है, जो भी साइन है, मैजेंटा है या येलो कलर है, वो कलर कैसे मिलेंगे? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बाय व्हाट इज रिमूव फ्रॉम व्हाइट लाइट, राइट? So you know that equal proportion of R red plus green plus blue produces white light, right? So if you want to produce the cyan color, the white light minus red color will give you cyan color, right? So R plus G plus 1, that is a white light, intensity 1. Black color रहेगा तो intensity will be 0, right? If you want to produce yellow color, it will be produced like white light minus blue. If you want to produce magenta, it is produced by what you are going to remove from white light, that is white light minus green. ठीक है, तो साइन जो कलर है इट कैन बी प्रोड्यूस्ड by removing the red color or red light from the white light. Yellow color can be produced by removing the blue color from white. Magenta can be produced by removing green from white light, right? Or in other words, you can say cyan color can be produced. You are subtracting C, red color from this white light. That means green plus blue going to produce cyan. Similarly, yellow के लिए what you are removing? Blue color. See, blue color you are removing from white light. That means यहाँ पर क्या रहेगा? Left hand side पे R plus G is equal to white light minus blue, and white light minus blue gives you yellow color. So yellow color can be produced by combining red and green. Similarly, magenta color, how it can be produced? Two ways: remove green light or green color from white, and another way क्या हो सकता है फिर? magenta के लिए remove green color, see this green color from white light, so white light minus green, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा red plus blue. तो magenta color can be produced by combining red plus blue. Okay, डिफरेंस समझ में आ रहा है? RGB it is a additive color model, CMY it is a subtractive color model, right? RGB में you are going to produce wide range of colors by adding those three primary colors, red, blue and green, whereas in CMY color model you are going to produce this color, or how you are going to produce this color? What you are going to remove from the white light, that respective color you will get when you remove. Suppose
जैसे कि मैंने बताया साइन कलर अगर चाहिए तो यू विल रिमूव द रेड लाइट और रेड कलर फ्रॉम व्हाइट लाइट. साइन मेजेंटा एंड येलो विल बी प्राइमरी कलर्स फॉर दिस मॉडल. ठीक है. आरजीबी कलर मॉडल जो था इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले पर्पस, वेयर एज सीएमवाई कलर मॉडल जो रहेगा इट विल बी यूज्ड फॉर ओनली प्रिंटिंग पर्पस. जहां पर भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, फिर जहां पर हमारा प्रिंटर रहता है, राइट, जहां पर भी प्रिंटिंग का ऑप्शन होगा एट दैट टाइम दैट CMY कलर मॉडल विल बी यूज्ड. In RGB color model, right, if you remember that black RGB color model में black color was at the origin, right, whereas in CMY color model white color is at the origin. ठीक है. ये CMY color model में जो भी black color produce होगा it is not actually pure black, it is like somewhat gray color, muddy color, muddy black you can say. तो फॉर बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए उसका एडवांस्ड कलर मॉडल वाज प्रपोज एंड दैट वाज CMYK. सेम रहेगा, सिर्फ फोर्थ पैरामीटर ऐड किया है K, बट इट रिप्रेजेंट्स अ ब्लैक कलर. हाउ मच और क्वांटिटी ऑफ दैट ब्लैक कलर यू आर गोइंग टू ऐड in this color model or in this CMY. So it represents the value of black color for better printing purpose, right? ठीक है. अभी तक जो बताया वो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? आदित्य, सुशांत, स्वरांजलि, यस मैम. डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम, समझ आ रहा है. ठीक है. ये पूरे कंसेप्ट नए हैं, मैं नहीं कहूंगी 100% आप लोगों को अभी समझ में आना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो जैसे जैसे आप सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग करोगे तब आप लोगों को ये थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन बेसिक जो है वो तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए. ये क्यूब देख के साइन मैजेंटा येलो कलर प्राइमरी कलर से ये कलर्स कैसे मिलेंगे, सब्सट्रैक्टिव कलर मॉडल क्यों कहा है, एप्लीकेशन क्या है, प्रिंटिंग में यूज होगा, राइट. व्हाइट कलर ओरिजिन रहेगा यहाँ पर, राइट. ग्रे स्केल तो सेम है और CMYK क्या है, इतना समझ में आया तो भी चलेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. ओके, और उसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म कलर स्पेस फ्रॉम RGB टू CMY or CMY to RGB, it can be transformed like this. RGB is equal to 111 minus CYB. Vice versa, same CYB color space can be obtained like this. Matrix 1 minus यहाँ पर होना चाहिए RGB. So transformation from RGB to CMY color space and CMY to RGB can be achieved by these two equations. ठीक है. एक पॉइंट लिखना है इसमें. कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं समझ में आ रहा है? डायग्राम, सब्सट्रैक्टिव कलर मॉडल, व्हाट आर द बेसिक प्राइमरी कलर्स CMY कलर मॉडल के लिए, साइन मैजेंटा एंड येलो प्राइमरी कलर्स रहेंगे, राइट. हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दोस थ्री कलर्स बाय सब्सट्रैक्टिंग विच कलर्स फ्रॉम व्हाइट लाइट. ठीक है. एप्लीकेशन क्या रहेगा एंड CMYK क्या है एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा. ठीक है. इतने पॉइंट्स लिखने हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट इज HSV कलर मॉडल. ठीक है. अभी इसके लिए आप लोगों को बुक में ही देखना पड़ेगा. नाउ से दिस इज द HSV कलर मॉडल, राइट. लेकिन इसके पहले अगेन वी विल गो थ्रू थ्री कंसेप्ट जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि कलर हैज, if you remember, color has three properties. H, that is a hue, S represents saturation and V represents value or intensity, right. So what is hue? What is hue? It is the name name of the color, so it can be any color,
रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, साइन मैजेंटा, कौन सा भी. सो H represents hue, मतलब name of the color. What S represents? S is the saturation. It represents purity of color. ठीक है, मतलब S परसेंटेज वाई कहा जाए तो अगर S इज इक्वल टू 100% है तो आई विल से कि सपोज रेड के लिए सैचुरेशन इज 100%, मतलब दैट कलर, रेड कलर इज प्योर कलर, राइट. अगर सैचुरेशन इज इक्वल टू सपोज 50% है रेड कलर के लिए तो आई विल से दैट प्यूरिटी ऑफ रेड कलर इज हाफ, राइट. समझ में आ रहा है आदित्य? समस्या मी आतापर्यंत काय सांगितलं ते, व्हॉट इज सॅच्युरेशन? इट रिप्रेझेंट्स प्युरिटी ऑफ कलर. ठीक है, फिर से बताना है सैचुरेशन. हाँ मैम. सैचुरेशन रिप्रेजेंट्स प्यूरिटी ऑफ कलर, मतलब सैचुरेशन की वैल्यू अगर 100% है तो अगर आप लोग रेड कलर कंसिडर करते हो, रेड कलर के लिए अगर सैचुरेशन S इज इक्वल टू सपोज मैंने कहा 100% और S इज इक्वल टू 1 कहा तो दैट मीन्स दैट कलर, रेड कलर इज प्योर कलर. उसमें अगर थोड़ा सा भी ग्रे कलर ऐड करते हो तो वो कलर फेड हो जाता है, राइट. तो एट दैट टाइम सैचुरेशन अगर मैंने कहा सपोज S इज इक्वल टू 50% का, तो जो रेड कलर रहेगा वो प्योर रेड नहीं रहेगा, तो उसकी प्योरिटी क्या रहेगी? 50% ही रहेगी, राइट. 50%, दैट मीन्स 50% दूसरा और कौन सा तो कलर उसमें ऐड किया है, दैट इज अ ग्रे कलर सपोज ऐड किया है. समझ में आ रहा है अभी स्वरांजलि? Yes ma'am. Yes ma'am. So S represents saturation, that is a purity of color, and V represents the value, that is the intensity or brightness of that color. So when value V is equal to 1, that means that color is with full intensity, मतलब bright color, right. आता समझते हैं what is H, what is S and what is V, right. Yes ma'am. So HSV model जो है it is defined over this hexagon और it is like cone shape. ठीक है, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो अभी इस HSV मॉडल में जो S रहेगा, H जो है ह्यू जो है, that represents the angle with the vertical axis. ठीक है, एक्चुअली जो हेक्सागन है, अगर इस एंगल, पूरे एंगल्स, कितने एंगल्स है यहाँ पर? हेक्सागनला किती एंगल्स असतात? 6. 6 एंगल्स, राइट. सो ये जो व्हाट यू कैन से, ऑल दिस 6 कलर्स, 6 कलर्स कौन कौन से? RGB एंड CMY. ठीक है, RGB रेड, ब्लू एंड ग्रीन, CMY cyan, magenta and yellow. All these 6 colors represents 6 angles, and these all 6 colors, of course all these 6 colors covers how many degrees total? 360 degrees of color hexagon, and those colors are separated from each other by 60 degree. समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? 6 कलर्स है, राइट. एंगल भी 6 है, सम ऑफ ऑल दिस 6 एंगल्स 360 डिग्री है. तो ईच कलर इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर बाय व्हाट? 60 डिग्री, राइट. मतलब रेड कलर अगर 0 डिग्री पे है तो येलो कलर कौन से, कहां पर होना चाहिए? 60 डिग्री. सो रेड एंड येलो आर सेपरेटेड बाय हाउ मेनी डिग्री? 60 डिग्री होना चाहिए. फिर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम येलो कलर बाय 60 डिग्री, तो ग्रीन होना चाहिए 120 डिग्री पे, साइन होना चाहिए 180 पे. अगर फिर से 60 ऐड करते हो तो नेक्स्ट कलर ब्लू होना चाहिए 240 डिग्री पे.
राइट फिर से 60 ऐड करते हो तो मेजेंटा होना चाहिए 300 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? What hue represents? Hue represents the angle with the, actually ये क्या है hue? Angle with the vertical axis. Hue represents name of the color. ये दोनों भी डेफिनेशन क्यों बता रही हूं? क्योंकि when I said H is equal to 60 degree, H represent क्या कर रहा है? Angle. H represent क्या कर रहा है? Name of the color. So when I said H is equal to 60 degree, it represents yellow color. When I said H is equal to 0 degree, so it represents, H represents, H is the angle as well as H is the name of the color, right? So when H is equal to 0 degree, it represents red color. अभी समझ में आ रहा है? When H is equal to 120 degree, it represents green color. When H is equal to 180, it represents cyan color. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो all these 6 colors है, that are total 6 colors cover total 360 degree of color hexagon, and those 6 colors are separated by 60 degree. तो hue अगर 0 to 60 डिग्री के बीच में है तो इट रिप्रेजेंट्स, विच कलर इट रिप्रेजेंट्स? ह्यू अगर 0 to 60 के बीच में है तो कौन सा कलर आएगा? डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड. ठीक है? ठीक है, रेड के लिए, सो रेड कलर के लिए ह्यू इज द एंगल, तो उसकी रेंज क्या रहेगी? 0 to 60 डिग्री, राइट? येलो कलर के लिए ह्यू मतलब एंगल, उसकी रेंज क्या रहेगी? 60 to 120 डिग्री, राइट? सो व्हेन H is equal to 60 degree, at that time it represents pure yellow color, राइट? और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा जो भी कलर का शेड मिलेगा इट विल बी क्लोजर टू द ग्रीन कलर. तो व्हेन H is equal to 120 degree, it represents ग्रीन कलर. ठीक है? तो येलो कलर के लिए रेंज रहेगा 61 to 0 to 60 के लिए रेड, उसके आगे येलो की रेंज रहेगी 120 to 180 तक ग्रीन कलर की रेंज रहेगी. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? समजत नसेल तर तसं सांगा, परत एकदा सांगायला. कळतंय का? यस मैम समझ आ रहा है. यस मैम. ठीक है, तो रेंज समझ में आ रही है ना अभी ह्यू की? देखो यहां पर भी दिया है, रेड कलर के लिए रेंज रहेगी 0 to 60 डिग्री. देखो यहां पर रेड के लिए रेंज है 0 to 60 डिग्री, येलो के लिए रेंज रहेगी ऑनवर्ड 60 to यहां तक, ग्रीन के लिए 120 to 180. ठीक है, तो ये हुआ ह्यू. नाउ सैचुरेशन, एस क्या रिप्रेजेंट करता है? S represents purity of that color. So when S is equal to 1, so that means that color is pure color, right? तो S जो है it will range from 0 to 1. ठीक है, S जो रहेगा it will range from 0 to 1. ठीक है, now if I said H hue is equal to suppose 60 degree and S is equal to 1. S is what? Purity of that color. So when S is equal to 1, saturation 1 होगा, that describes the purity of that color. It is a pure color, right? कौन सा color? तो when I said H is equal to 60 degree, it represents which color? येलो कलर. Yellow color, right? So when I said H is equal to 60 degree, it represents yellow color. At the same time, saturation is 1. S is equal to 1. That means it is a pure
येलो कलर, राइट? समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे सैचुरेशन कम होता जाएगा, राइट? एक्चुअली यस जो है ना, अगर थोड़ा और डिटेल में बताना चाहती हूँ तो देखो समझ में आ रहा है का? एस जो है, इट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ एक्चुअली ग्रे कलर, राइट? सो अमाउंट ऑफ ग्रे that you are going to add in that particular color, right? तो जब H is equal to 60 है, saturation 1 है, that means it is a pure yellow color. लेकिन if you are going to reduce the saturation, reduce करना चाहते हो, that means you are going to add more gray color in that yellow color, that's why it looks like faded yellow color. So उसके लिए saturation डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है? क्योंकि सैचुरेशन फुल है, 1 है, तब प्योर कलर रहेगा। जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, ये प्योर येलो कलर है, तो जैसे जैसे सैचुरेशन डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ये कलर क्या होता जाएगा? फेड होता जाएगा, राइट? तो यहां पर येलो की शेड रहेगी, लेकिन इट विल बी, क्या कहेंगे, इसके जैसा प्योर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्रे कलर हमने ऐड किया है, क्योंकि सैचुरेशन डिक्रीज किया है। सैचुरेशन और डिक्रीज करते हो तो और मोर ग्रे कलर उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इससे और फेड कलर फिर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है? तो और सैचुरेशन फिर से डिक्रीज कर रहे हो तो फिर से मोर ग्रे कलर यू आर गोइंग टू ऐड, और इससे यहां पर जो कलर था येलो कलर, उससे और फेड येलो कलर यहां पर मिलेगा। अभी समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझते का? यस मैम। ठीक है। तो अभी ये ग्रे कलर का अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि सैचुरेशन जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, और यू कैन से रेंजेस फ्रॉम 0 to 100%, परसेंटेज में भी हो सकता है, राइट? तो S इज इक्वल टू 1 रहेगा, तो दैट मीन्स दैट कलर इज प्योर कलर, राइट? So if I said now H is equal to 120 degree and H is equal to 120 degree and S is equal to 1, saturation 1 है, saturation 1 means pure color, and H is equal to 120 degree, तो that means जो कलर मिलेगा, कौन सा कलर मिलेगा? ग्रीन कलर, it will be a green and it will be a pure green color, ठीक है? अभी इस H is equal to 120 degree and S is equal to मैंने कहा सपोज 0.5, that means 50% अगर कहा, तो purity of this green color is, you can say it is a 50%, or that green color is 50% pure. समझ में आ रहा है? यस मैम। समझते क्या? समझ में आ रहा है? प्रथमेश कौन है? ठीक है। Now next, third is V, value. तो value जो है it represents, what it represent? Brightness of color or intensity of color, right? So when I said suppose अभी H is equal to V is equal to, मैंने क्या बताया? It represents brightness और intensity. Brightness कितना है? Full brightness. That means value V is equal to 1 रहेगी. V is equal to 0 है तो कुछ भी brightness नहीं है, पूरा black black होगा, right? So V is equal to 1. That means जो भी कलर सिलेक्ट किया है that color will be with full brightness, right? तो अभी सपोज H is equal to 120 डिग्री है, राइट? सपोज सैचुरेशन 1 है एंड वैल्यू V is equal to 1, तो अभी इसका मीनिंग क्या होना चाहिए आप लोग मुझे बताओ? H is equal to 120 डिग्री means what? येलो कलर, ग्रीन कलर सर। Green color, right? Green color. It is going to select green color. Saturation S is equal to 1. What it represents? प्योर प्योरिटी। ग्रीन कलर। Purity. 1 है मतलब it is a pure green color, right? And V is equal to 1 means what? उसका brightness क्या रहेगा? ब्राइटनेस। Full. मतलब pure, it is a pure green color
who समझते का? Yes, ma'am. ठीक है. Now suppose क्या है, H is equal to suppose 240 डिग्री, राइट. S is equal to 1 है, लेकिन ब्राइटनेस V is equal to 0 लिखा है. तो which color it is going to represent? ऐसा है क्या? 240 पे है तो ब्लू कलर रहेगा, S is equal to 1 तो प्योर ब्लू कलर, विथ V is equal to 0 तो ब्राइटनेस कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स White. नो Black. वाइट. इट गोइंग टू, हाँ, ब्राइटनेस कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स V is equal to 0 रिप्रेजेंट्स ब्लैक कलर, राइट. ठीक है, तो मतलब एक कंक्लूड कर सकते हो कि वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ ह्यू, मतलब कलर कौन सा भी हो, वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन, तो यू विल गेट H एंड S मैटर नहीं करे. वैल्यू अगर 0 है, गेट ब्लैक कलर. एंड व्हाइट कलर कैसे मिलेगा? इफ, इसके उल्टा, राइट. इफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 0 है एंड वैल्यू ब्राइटनेस इज फुल, V इज इक्वल टू अगर 1 है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ H की वैल्यू कौन सी भी रहने दो, लेकिन S इज इक्वल टू 0 है एंड V इज इक्वल टू 1 है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाइट कलर. ठीक है. HSV कलर मॉडल मध्ये कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए? सी दिस मेन डायग्राम. व्हाट H रिप्रेजेंट्स एंगल विद द वर्टिकल एक्सिस. ये जो 6 कलर्स है दैट आर 360 डिग्री में अगर डिवाइड करते हो तो हर एक कलर जो रहेगा इट इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय 60 डिग्री, राइट. तो रेड 0 डिग्री पे है, येलो तो 60 डिग्री पे, ग्रीन 120 पे, राइट. ये रिलेटेड टू ह्यू हुआ. देन व्हाट इज सैचुरेशन, प्योरिटी ऑफ दैट कलर. S इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? S इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स प्योर कलर रहेगा, राइट. एंड देन वैल्यू ऑफ V that decides the brightness. Again it can be 0 to 1 और या फिर परसेंटेज में कहा जाए तो it can be 0 to 100% value of V, राइट. व्हाइट कलर कैसे मिलेगा? ब्लैक कलर कैसे मिलेगा? राइट. ब्लैक कलर सिर्फ V इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, वैल्यू मतलब इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस 0 होना चाहिए. वॉट एवर इज द कलर, उसका सैचुरेशन जो भी रहने दो, V इज इक्वल टू 0 है तो ब्लैक कलर रहेगा. Whereas S is equal to saturation, S is equal to 0 है and V वैल्यू ब्राइटनेस फुल है, V is equal to 1 है तो व्हाइट कलर रहेगा. ठीक है. थोड़ा फर्क कर रहा है, थोड़ा बहुत. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. नाउ उसका ही नेक्स्ट एडवांस्ड मॉडल वर्जन रहेगा HSL. सेम है. So this HSL same. H represents hue, S represents saturation and instead of V यहाँ पर L ऐड किया है तो L represents lightness. ठीक है. Lightness means what? Actually it of black or white paint in the, ठीक है. लाइटनेस म्हणजे काय? इन अ गिवन कलर. ठीक है. जैसे कि मुझे लाइट रेड चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट आई विल सिलेक्ट रेड एंड लाइट रेड के लिए what amount of white paint or white color you are going to add that represents lightness, right. तो lightness
समजलं का हे मी काय सांगितलं स्टेटमेंट? समझ में आया? What lightness represents? It's the amount of white or black you are going to लाइट रेड कलर चाहिए तो रेड कलर जो होगा दैट आई विल मिक्स विथ व्हाइट पेंट एंड व्हाट अमाउंट ऑफ white color or white paint you can say you are going to add in a red color, it is described by that lightness parameter and it ranges from 0 to 1. ठीक है, तो अगर लाइटनेस L इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने लाइट रेड के लिए बताया, ठीक है, कंसिडर द एग्जांपल ऑफ लाइट रेड. लाइट रेड चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर रही हूं, रेड कलर में आई एम गोइंग टू ऐड व्हाइट पेंट. बराबर है, रेड कलर में मैं क्या कर रही हूं, रेड पिगमेंट दैट यू कैन मिक्स विद द व्हाइट पेंट. तो इस स्टेटमेंट के लिए लाइटनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लाइटनेस जो रहेगा इट कैन बी, लाइटनेस मैंने बताया इट कैन बी 0 to 1. ठीक है, तो क्या लगता है, व्हाइट पेंट मुझे ऐड करना है, राइट, रेड कलर में व्हाइट पेंट. व्हाइट पेंट ऐड करना है मतलब 0 ऐड करना पड़ेगा या फिर 1 ऐड करना पड़ेगा, क्या लगता है? 1 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 ऐड करना है मतलब हाई लाइटनेस वैल्यू ऐड करनी है, राइट, हाई लाइटनेस वैल्यू, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स व्हाइट कलर और 0 जो रहेगा इट रिप्रेजेंट्स द ब्लैक कलर, राइट. लाइटनेस ची कन्सेप्ट कळती है? यस मैम. तो इट इज द, जो HSV मॉडल था इट इज अ हेक्सागन और इसे कहेंगे हम बाय हेक्सागन शेप भी कहेंगे, क्योंकि सी यहाँ पर एक कोन बन रहा है, ऊपर भी एक कोन बन रहा है, तो बाय हेक्सागन मॉडल बोल सकते हैं इसे. वहां पर ये जो तीनों भी कलर्स है, राइट, not 3, all 6 colors you were getting with value V is equal to 1 पे मिल रहा था, where यहाँ पर all these 6 colors you can achieve with lightness value 50%, मतलब 0.5 पे ही you can get this all these pure colors. ठीक है, इतना एक डिफरेंस याद रखो. यहाँ पर ये जो प्योर कलर्स आप लोगों को मिल रहे थे उसके लिए भी इज इक्वल टू 1 था, S इज इक्वल टू 1 था, राइट, एंड जो भी H सिलेक्ट करते हो वो. लेकिन यहाँ पर आप लोगों को L अगर 0.5 लाइटनेस 0.5 सिर्फ सिलेक्ट करते हो या फिर हाफ अगर सिलेक्ट करते हो तो यू विल गेट ऑल दिस 6 प्योर कलर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जो भी पॉसिबल कलर्स रहेंगे along the edges that you can get with this lightness value 0.5. ठीक आहे, एवढंच ह्याच्यामध्ये, बाकी सांगण्यासारखं काही नाहीये. ठीक आहे, HSV लक्षात आलं, HSV लाच अनुसरून यू हैव टू राइट HSL मॉडल. H सेम है, S सेम है, सिर्फ L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखना है, लाइटनेस. एक एग्जांपल देना है कौन सा भी, एंड अगेन वैल्यू ऑफ लाइटनेस कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1. 1 है तो दैट मीन्स व्हाइट कलर एंड 0 है तो ब्लैक कलर. एंड ये जो भी 6 कलर्स है, प्योर 6 कलर्स यू कैन ऑब्टेन विथ लाइटनेस वैल्यू 0.5 और हाफ. ठीक है, इतना याद रखना है. Now next point, what are the applications of color? Color हे तुम्ही वाचलं तरी कळण्यासारखं आहे, राइट. फर्स्ट आर्ट, राइट, मतलब पेंटिंग में भी पण कैन यूज वेरियस कलर्स, राइट,
in painting, and second is जो भी कलर्स रहेंगे, कलर्स you say can reflect the mood, right? White color represent the peace, presents the horror, you can say. ठीक है. Third one is industries, right? जो कलर्स या फिर ग्राफिक्स है that is widely used in education या फिर entertainment, advertising industries में use हो सकता है, right? To represent the concepts more effectively, you can say, right? Then fourth is data analysis. ठीक है. तो data analysis मतलब you can use the different colors to represent the different information, like जैसे कि satellite image processing है या फिर हाँ उसमें ही ग्रीन कलर जो रहेगा आप लोगों को पता है कि इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ जंगल्स एंड वेजिटेशन, राइट? वेयर एज अगर कहाँ पर वाटर है, अगर वो रिप्रेजेंट करना है तो वी जनरली गो विद ब्लू कलर, राइट? देन फिफ्थ इज वार्निंग. वार्निंग मतलब what you can give the example of traffic signals, right? Red, green, orange colors are used in traffic signals to give some specific instructions. Okay. And then next point, last, culture and personality. So you can say different religions have different representative colors, right? And that color can be used to differentiate. That means culture represent कर रहा है या फिर culture एक culture से दूसरे अगर differentiate करना है तो color भी use हो सकता है या फिर personality भी differentiate हो सकती है, gender, age. जैसे कि girls जो है generally go with pink color या फिर boys है या फिर what you can say blue is the choice of what man, right? So वो भी एक हो सकता है. Different religion can go with different colors. ठीक है. तर हे वाचलं तरी कळण्यासारखं आहे, इतना इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, राइट? तो यहाँ पर वी हैव फिनिश व्हाट यू कैन से द फर्स्ट सब पार्ट ऑफ द फोर्थ यूनिट. ठीक है. जैसे कि मैंने बताया था फोर्थ यूनिट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स. फर्स्ट इज कलर मॉडल, सेकंड इज इल्यूमिनेशन मॉडल एंड थर्ड जो है विजिबल सरफेस डिटेक्शन, यू कैन से. तो उसमें से कलर मॉडल जो है जो हमने कवर किया है. ठीक है. नेक्स्ट वीक में we will cover the illumination model. ठीक है. कलर मॉडल जो है यूनिट सॉरी है जो सब पार्ट है उसमें कुछ डाउट थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है. पॉइंट्स क्या क्या कवर किया हमने, अगर आप लोगों को याद है तो लाइट देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, राइट? देन क्रोमेसिटी डायग्राम क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कलर्स दैट ह्यूमन आई कैन परसीव. ठीक है. लेकिन जो मॉनिटर है वो मॉनिटर हमारे जो कंप्यूटर के मॉनिटर रहेंगे उसके ऊपर इट कैन नॉट डिस्प्ले ऑल दोज कलर्स विच कैन बी परसीव बाय ह्यूमन आई. तो उसमें से कुछ सेट रहेगा, सबसेट रहेगा, वही कलर सिर्फ डिस्प्ले होंगे. तो दैट कलर गैमेट हमने देखा था, आरजीबी कलर गैमेट. तो जो भी कलर्स है दैट आर सपोर्टेड बाय द मॉनिटर तो दैट कलर्स कैन बी जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेड, ब्लू एंड ग्रीन. तो कैसे कलर्स मिलेंगे या फिर वो कैसे जनरेट होते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट कलर मॉडल्स आर देयर. हमने देखा है अभी कि आरजीबी एक है, सीएमवाई एक है, एचएसवी है, एचएसएल है, राइट? तो आरजीबी में एडिटिव, देन व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, राइट? उसका एप्लीकेशन क्या है, कलर्स कैसे जनरेट होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या है, राइट? सीएमवाई कलर मॉडल में अगेन प्राइमरी कलर्स कौन से रहेंगे, CMY. इट इज अ सब्सट्रैक्टिव कलर मॉडल, राइट? कहाँ पर यूज होगा, प्रिंटिंग में यूज होगा, राइट? साइन कैसे जनरेट करना है, और येलो कलर कैसे जनरेट करना है, मैजेंटा कैसे जनरेट करना है. ठीक है. फिर उसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, आरजीबी टू CMY एंड CMY टू आरजीबी. एचएसवी में ह्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट एंगल्स, राइट? नेम ऑफ द कलर एस सैचुरेशन, उसकी वैल्यू 0 to 1 या फिर 0 to परसेंटेज, दैट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी ऑफ कलर. वी मतलब वैल्यू है या फिर इंटेंसिटी या फिर बोल सकते हैं ब्राइटनेस ऑफ कलर है. तो उसके लिए जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कौन सा कलर सिलेक्ट होगा वो हमने देखा है, राइट? एंड एचएसएल में एल रिप्रेजेंट्स लाइटनेस. जो भी ऑल 6 हमने जो कलर्स देखे अभी आरजीबी एंड सीएमवाई, ऑल दिस 6 कलर्स कैन बी अचीव्ड with the lightness value 0.5 or 50% or 1.5, right? तेच महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये. बस L is equal to 0 represents black and L is equal to 1 represents white.
ठीक आहे. थोडंफार लक्षात आलंय? समरी समझ में आ रहा है जितना हमने देखा है? नॉट 100%, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट, मतलब जब सेकंड रीडिंग के लिए जाओगे या फिर थर्ड रीडिंग के लिए तो कुछ तो समझ में आना चाहिए. ठीक आहे. तर एकदा वाचून बघा, एक बार घर पे पढ़ लो थोड़ा बहुत. अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है. कॉलेज में जब भी आओगे तब एक बार फिर से बता दूंगी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन थ्योरी पार्ट है तो मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो यू आर क्लेवर इनफ टू इलैबोरेट दोस कंसेप्ट्स इन एग्जाम. कंसेप्ट अगर समझ में आ रही है तो ठीक आहे. तर आजच्या दिवसापुरतं एवढं बस है. नाउ वी विल मीट ऑन मंडे. मंडे को जो डीएम का लेक्चर है वहां पर भी सीजी होगा, राइट? एंड वेनेसडे में जो सीजी का था वहां पर डीएम लेंगे. ठीक है. नाउ वी विल एंड द सेशन हियर.